Hello, everybody, and welcome back to our Literary Theory and Cultural Studies read along series, in which we are covering Literary Theory and Cultural Studies, the book by P.K. Nayar. This is our fourth session, and today we are going to delve into semiotics, which is a part of structuralism, chapter 1. If you've not read the earlier pages with me, please go on to check out the first, second, and the third lecture that we had on this. And if you're enjoying this series and if you want this to continue, please share it with others. If we have more audience, only then we can continue this series. Otherwise, it is very difficult. I hope you understand because we are reading word by word, page by page. So please do share this with others, with your groups, maybe at your in your statuses, wherever you think people will come and join. Let's delve into it. Have our courses running for UGC NET and UPPSC GDC, and I have it for KVS and EMRS ka writing practice ka course. If you wish to join any of these courses, please get in touch with me. Let's start with semiotics. Semiotics क्या है? It can be defined very simply as the study of science. And ये I think 2 to 3 years back exactly ऐसा ही question exam में आया था. What is semiotics? Study of science. Simple definition. Science क्या होते हैं? कोई भी साइन जो आपको मिल रहा है, मैं आपको कोई आंखों में इशारा कर सकती हूँ, मैं कोई जेस्चर कर सकती हूँ, कोई साउंड आपको सुनाई दे रहा है बाहर, कोई आपको ऑब्जेक्ट नजर आ जाए, कोई आपको प्लेकार्ड नजर आ जाए, कोई आपको कुछ भी हो सकता है. वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ वो भी साइंस हैं. उसको आप इंटरप्रेट करोगे, आप समझोगे, उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाओगे. कोई भी चीज जो आपके दिमाग में मीनिंग को जनरेट करे एज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिग्निफिकेशन. हाउ कैन ऑब्जेक्ट्स बी साइन? The arrangement of a traffic island with a concrete structure, a central box mounted by a traffic light is a sign that generates meaning. कोई भी ऑब्जेक्ट साइन हो सकता है. कैसे? वो जैसे ट्रैफिक लाइट है, वो एक साइन हमें दे रहा है, वो जनरेट करता है मीनिंग कि अच्छा रेड है मतलब मुझे स्टॉप हो जाना है. Asking us to look at the light above, move ahead only when it is green, and go around or past the island. A man with a gun is also a sign. आप देख रहे हो इसके पास गन है मतलब डेंजर है. आपके दिमाग में क्लिक करेगा, ओ डेंजर, थ्रेट. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी हो सकता है क्योंकि एक पुलिस मैन भी हो सकता है वो, पर मैन विद अ गन जनरली हमें लगता है डेंजर, है ना. Now there are two accepted origins of semiotics. कि semiotics की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने टर्म दिया? दो origins हैं जो accepted origins हैं. एंड एक तो हमने सोशियोरियन लिंग्विस्टिक्स देख लिया. सोशियोर के टर्म्स में एक्चुअली सिमियोलॉजी है जो हमने सिग्निफायर सिग्निफाइड की स्टडी किया, साइन है वो. तो सोशियोर ने यूज किया था सिमियोलॉजी जो टर्म है टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ साइंस. एक और उनका कंटेम्प्रेरी था, एक अमेरिकन फिलोसोफर, एक लॉजिशियन जिनका नाम था C.S. पियर्स. C.S. पियर्स प्रेफर्ड द टर्म सेमियोटिक्स. बात सारी सेम है कि आपको एक सिग्निफायर मिल रहा है, आप दिमाग में मीनिंग जनरेट कर रहे हो, एक सिग्निफाइड क्रिएट हो रहा है, मीनिंग जनरेट हो रहा है. सिमियोलॉजी और सिमियोटिक्स बिल्कुल सेम है, बस टर्म्स अलग हैं. और आज सिमियोटिक्स ज्यादा प्रेफर्ड टर्म है, कॉमनली यूज्ड टर्म है. Semiotics is popular among students of media studies, film studies, cultural studies और लिटरेचर वालों को सब पढ़ना होता है क्योंकि अब एग्जाम में फिलोसोफर्स हों या कल्चरल थियोरिस्ट्स हों या मीडिया स्टडीज के थियोरिस्ट्स हों, वो सब एग्जाम में आ रहा है. In addition to those of literary criticism, semiotics provides them with the tools required to analyze the forms of a text and to read text as a part of general social systems of sign where meanings are generated, accepted and subverted as a part of cultural process. तो ये कह रहे हैं कि सिमियोटिक्स हमें एक टूल प्रोवाइड करता है
अगर हमारे सामने एक टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को हमें एनालाइज़ करना है, तो ये एक टूल है। अच्छा ठीक है, साइन्स देखो और साइन्स से क्या मीनिंग जनरेट हो रहा है, इस तरह से भी हम एनालाइज़ कर सकते हैं किसी एक टेक्स्ट को, एज़ अ पार्ट ऑफ अ जनरल सोशल सिस्टम्स ऑफ साइन। जहाँ पे मीनिंग कभी जनरेट हो रहा है, कभी उसको हम एक्सेप्ट करें, लेकिन कभी हम उसको सबवर्ट भी कर रहे हैं। So semiotics helps them to relate the various elements of a text to each other and to the larger social system. So in this, it is similar to structuralism, very much similar. Structuralist जो semiotics है, वो it builds on semiotic theories of science to read narrative, right? Since we have acquired some familiarity with Saussure's works, we can move on to look at Peirce's contribution कि पियर्स ने क्या कहा जब हम साइंस को स्टडी कर रहे हैं। अब पियर्स ने ना 3 कॉर्नर्ड या ट्राइडिक मॉडल प्रोवाइड किया हमें साइन का। प्लीज रिमेंबर दिस। 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज representamen, second term is interpretant, third term is object. This is exactly similar to signifier, signified and ऑब्जेक्ट या रेफरेंट, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर ट्रैफिक लाइट एक साइन है, एक सिग्निफायर है, और रेड लाइट एक सिग्निफायर है, तो मीनिंग जनरेट क्या हो रहा है? यू हैव टू स्टॉप। अब इस पूरे प्रोसेस में व्हाट आर वी रेफरिंग टू? वी आर रेफरिंग टू दिस इंटायर सिस्टम ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, सो दैट इज द ऑब्जेक्ट। अगेन, रेड लाइट जहां पे सिग्निफायर है, वहीं पे रेड लाइट रिप्रेजेंटामेन भी है। द फॉर्म द साइन टेक्स, मटीरियल हो या इमटीरियल हो, जैसे साउंड्स हो, राइटिंग हो, कोई भी पेंटिंग हो, जेस्चर है, वर्ड है, जो सिग्निफायर है वही रिप्रेजेंटामेन है। दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉस्योरियन सिग्निफायर। इसको कभी कभी हम साइन व्हीकल भी कहते हैं। इंटरप्रिटेंट, जब आपने रेड लाइट देखी, आपके दिमाग में आया स्टॉप, आपने इंटरप्रेट किया उस साइन को, that is signified or interpretant. The sense that is made of the sign, that is the sign created in the mind of the listener or viewer as a result of reading or listening to the representative. It is important to note that interpretant is not the person doing the reading, but the idea generated in the mind when we see the sign. And what is the object? जिस चीज को साइन रेफर कर रहा है, entire traffic signal. It is also sometimes called as the referent. आप किस चीज को रेफर कर रहे हो? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लें? आपने एक रेस्टोरेंट देखा और आपको जाना है। उस रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा है ओपन। तो इस पूरे प्रोसेस में वो बोर्ड आपका क्या है? रिप्रेजेंटामेन, उस पे जो लिखा हुआ है। उस बोर्ड को देख के आपने इंटरप्रेट किया कि रेस्टोरेंट इज ओपन एंड आई कैन गो इन। आपने मीनिंग जनरेट किया, और इस पूरे प्रोसेस में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द रेस्टोरेंट इटसेल्फ। ठीक है। और ये तीनों चीजें, जो ये प्रोसेस पूरा होता है हमारे दिमाग में, इंटरेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज इज कॉल्ड सेमियोसिस। कि आपने साइन पढ़ा, इंटरप्रेट किया, और जिस साइन के बारे में हम पूरा बात कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस इज कॉल्ड सेमियोसिस। So language is the effect of this interaction. For example, let us take a sign in a doctor's clinic. डॉक्टर का क्लिनिक आप गए और लिखा है डॉक्टर इज इन। दिस इज अ साइन दैट इज इंस्क्राइब्ड एज वर्ड्स एंड नॉट एज अ पिक्चर, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेमियोसिस कैसे होगा? तो रिप्रेजेंटामेन इज द टेक्स्ट विच इज रिटन, डॉक्टर इज इन। ऑब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इंटरप्रिटेंट क्या है? द आइडिया जनरेटेड इन आवर माइंड अपॉन रीडिंग दिस साइन, कि डॉक्टर भाई अंदर है और मुझे वेट करना होगा अपनी टर्न का। द साइन इटसेल्फ डज नॉट से प्लीज वेट, लेकिन आपने समझ लिया वो आइडिया जनरेटेड बाय द साइन आस्क्स अस टू डू सर्टेन थिंग्स। We can quickly detect the paradox here. Paradox क्या है? Paradox that will recall Saussure's own notion of referentiality. The sign generates another sign, which is interpretant in our mind. So, if we want to use Saussure's concept to understand Peirce, a signifier actually generates another signifier in our mind. How? ये हमने देखा डॉक्टर इज इन, ये एक सिग्निफायर आ गया।
इस सिग्निफायर ने एक और सिग्निफायर क्रिएट किया, प्लीज वेट। प्लीज वेट, ठीक है, आप कहोगे कि ये तो आइडिया मैंने जनरेट किया, बट अगर आप इफ यू थिंक अ लिटिल डीपर, दिस इज अनदर सिग्निफायर. So this process of science giving rise to other science is our act of reading or listening is a feature of language. We already have Saussures ideas that words do not refer to reality but to other words, है ना? We therefore have an, अब जिसने पुरानी क्लास पढ़ी है उसको ये समझाने की दोबारा जरूरत नहीं है. Words do not refer to reality, but words refer to other words. Because reality क्या है? हमने तो चीज़ों को नाम दिया हुआ है. ये पेड़ है, ये अलमारी है, ये बैग है. Words refer to other words. तो हमारे पास आ क्या रहा है? अनएंडिंग सिमियोसिस, जो हम एक्चुअली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे representamen या signifier generates more signs, which we then have to interpret, leading to more science, and it goes on. जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपको एक क्वेश्चन मिला, व्हाट इज एन एनिमल, ये सिग्निफायर है, आपके दिमाग में तुरंत कुछ आ गया, किसी के दिमाग में डॉग, किसी के दिमाग में कैट, राइट? लेट्स से आपके दिमाग में डॉग आया. अब ये सिग्निफायर कैसे है? व्हाट इज अ डॉग? अब इसको आंसर करने के लिए आपके दिमाग में कुछ और आएगा. डॉग इज अ पेट, लेट्स से आपके दिमाग में आया, तो मैं कहूंगी व्हाट इज अ पेट. तो ये सारे अपने आप में सिग्निफायर्स बनते जा रहे हैं और अनएंडिंग सिमियोसिस हो रहा है. आप सिग्निफाइड पे रीच ही नहीं कर रहे हो. सिग्निफायर विल ऑप्ट signifiers, we will opt for Saussure's signifier as a term. अब CS Peirce का सेमियोटिक्स फेमस हो गया, लेकिन representamen, interpretant ये उतने पॉपुलर टर्म्स नहीं हुए. Saussure के टर्म्स सिग्निफायर और सिग्निफाइड और पॉपुलर हुए, तो हम इन टर्म्स को ही यूज करेंगे मूविंग फॉरवर्ड. अब क्या हुआ? ये कहते हैं सिग्निफायर. सिग्निफायर्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू देयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेफरेंट इन थ्री मोड्स. कि सिग्निफायर और जिसकी भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ, I knocked at your door and I said, please open the door. I didn't say anything. Let's say I just knocked at the door. यहाँ पे सिग्निफायर क्या है? Knocking is the signifier. और उससे आप itself, it is an object also, कि डोर पे नॉक हो रहा है. तो रिलेटेड कैसे हैं ये आपस में? इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट रिलेशन है. क्यों? क्योंकि अगर आपके डोर पे नॉक हो रहा है तो आपको 100% पता है कि कोई बाहर है, या आपकी फोन की घंटी बज रही है, आपको पता है कि देयर इज समबडी ऑन द अदर साइड हु इज कॉलिंग मी. लेकिन ये सब एग्जाम्पल्स में नहीं होता, राइट? अगर मैं आपको कहूं दिस इज अ ट्री, मैंने ट्री एक सिग्निफायर दिया आपको, ट्री. क्या वो ट्री और जो रियल ट्री है उनके बीच में हमने बात की है सॉसियोर में कि इनका रिलेशन आर्बिट्रेरी है, कि कोई रिलेशन नहीं है आपस में. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड यूजेज कि हम उसको ट्री बुला रहे हैं. तो एक आ गया कि देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल, इट इज आर्बिट्रेरी. लेकिन अब मैं आपको देती हूँ ओनोमोटोपिक वर्ड्स. आप सबको पता है कि क्या होता है ना. ही फेल विद द थर्ड, ही फेल विद द थर्ड. थर्ड एक ओनोमोटोपिक वर्ड है. तो आपको एक देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन ही बोल दो चाहे. ओनोमोटोपिक वर्ड्स और जो ऑब्जेक्ट that they are referring to, hiss, we know that snake hisses, yeah, buzz, we know that, okay, this is a what we are referring to, we know because it is used like that. तो ये तीन तरह से signifiers and the object of reference are connected. Let's read. First is symbol, symbolic, जहां पे कोई relationship नहीं है. Please remember the terms. No relationship between the signifier and the objects or the referent. And the relation has to be learned. हमें सीखना पड़ता है. सारी लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक होती है, इसलिए सिंबॉलिक नाम दिया है इसको. Since there is no real connection between the word cat and the animal, we acquired the relation through use. हमने just a minute please.
Sorry about that. Okay, knock on the door. Definitely somebody outside. Let's continue. Uh, so we acquire this relationship through use. For example, we understand that a sign of the red cross on a nameplate indicates medical doctor. A red light on the traffic signals indicates stop. इसका मतलब ये नहीं कि रेड लाइट में कुछ ऐसा है कि उसका मतलब ही स्टॉप होता है. ये रिपीटेड यूजेज से हम समझ गए हैं. तो कोई इंट्रिंसिक कनेक्शन नहीं है between a woman or man who practices medicine or the Red Cross. Similarly, no connection between the act of stopping your vehicle and the red light. Okay? Let's move to the second one. Icon, iconic. The signifier here resembles the object it seeks to represent. तो थोड़ा बहुत एक आइकन उसका एक होगा जिससे थोड़ा बहुत सिग्निफायर और जिस ऑब्जेक्ट की वो बात कर रहे हैं वो आपस में रिजेंबल करते होंगे. कैसे? इट मिमिक्स द सिग्निफाइड और द कॉन्सेप्ट, टेक्स ऑन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्वालिटीज. तो ऐसा कुछ होगा कि वो सिग्निफाइड को मिमिक करेगा. सिग्निफायर जो होगा आपका, वो कुछ ऐसी क्वालिटीज उसमें होंगी, ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज उसमें होंगी. I gave you the example of onomatopic words. Very good example of iconic signs. Here the signifier hiss. मैंने सिर्फ आपको किया या buzz signifier मिला आपको. आपको quickly पता चल जाएगा कि I am कोई buzzing sound वाला जो होता है या मधुमक्खी है या मच्छर है उसका उससे ये resemble कर रहा है. Seems to capture the actual sound which is made by the snake. Similarly, when we say he fell with a thump, the thump tries to capture the sound of the body falling down and hitting the floor. So the iconic sign is imitative in the relationship between signifier and signified. And finally, the third relationship, which is direct relationship. A good example of the indexical, this is called index or indexical, would be a knock on the door. We know, we infer that the signifier head knock is connected to the presence of somebody outside who wishes to come in. Concept आपके दिमाग में signify तो यही बनेगा ना कि अच्छा कोई अंदर आना चाहता है. Another example would be the simple fever. किसी को fever है वो signifier है. It is directly connected to a pathological cause कि कुछ तो हुआ होगा, खांसी जुकाम कोई infection जिसकी वजह से fever आया. So fever is a signifier that suggests something is wrong. Clear? Semiotics suggests that for users of language, sign stands in for or represents something. Signs are made of signifiers and signifieds, and the relation between the two can be number one, arbitrary, number two, imitative, or it can be directly connected. The process of the interaction between the word, object, to signified, and the idea or sign generated in our mind upon hearing the word is called semiosis, pura process. So semioticians therefore believe that the reality is understood as a set of signs. Signs हमारी reality को construct करते हैं. It will be this particular notion of language that signs that post-structuralism will build upon. इसी पे build वो करेंगे 1960s में और फिर बाद में, right? जूलिया क्रिस्टोफर का एक अर्ली वर्क था पोएटिक लैंग्वेज पे. उन्होंने पोएट्री की लैंग्वेज को मैं देखूंगी. उसमें इन्होंने आर्ग्यू किया कि जब एक सब्जेक्ट लैंग्वेज में एंटर करता है इट वाज मोटिवेटेड बाय प्लेजर. द एंट्रेंस ऑफ द सब्जेक्ट इनटू लैंग्वेज मतलब एक बच्चा है ना, वो लैंग्वेज सीख रहा है अभी. जब वो एंटर कर जाता है पूरा, उसको लैंग्वेज आ गई है. शी सेड इट वाज मोटिवेटेड बाय प्लेजर. सिग्निफिकेशन included two main components. Number one is the semiotic. This is associated with the mother, the body, and the pre-linguistic. मतलब जब बच्चा अभी उसको बोलना नहीं आता, pre-linguistic, और what she calls the cora. अब हमारे जाक लाकान थे जिन्होंने क्लियर डिविजन कर दिया कि ये हमारा 3 स्टेजेस हैं, मिरर स्टेज है, सिंबॉलिक स्टेज है, रियल स्टेज है. इन्होंने कहा मिरर स्टेज इज प्री लिंग्विस्टिक स्टेज और फिर डायरेक्टली सिंबॉलिक आ जाती है जिसमें बच्चा लैंग्वेज में एंटर कर जाता है. जूलियट क्रिस्टोफर ने कहा कि एक और एक्चुअली स्टेज है सिमियोटिक या कोरा,
जिसको प्री लिंग्विस्टिक स्टेज कहा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है बिफोर एंटरिंग द सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज होता है जब बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है, वो एंटर कर जाता है लैंग्वेज में। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो कम्युनिकेट नहीं करता, करता है ना। रोता है तो पेरेंट्स को पता चलता है कि इसको शायद भूख लगी है, टाइम हुआ है, या मे बी द डायपर इज़ वेट और मे बी ही और शी वांट्स टू स्लीप। हँसता है तो पता चलता है, इशारे करता है तो पता चलता है, कम्युनिकेशन इज़ देयर, कोरा। It is associated with the body, the gestures. This is the material poetic dimension of the language. तो ये है poetic dimension language का, हम लोग chapter 2 में पढ़ेंगे। So it is the foundation of language for Christopher. And इसको इन्होंने term दिया है, please remember the term is genotext. ठीक है। दूसरी बात की इन्होंने symbolic की, ये है syntax, grammar। जब बच्चे को आ गया, लिंग्विस्टिक एक्ट है ये। इट इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज वी नो इट। जब वो बोल रहा है मम्मा आई वांट टू ईट, पापा आई वांट टू आई डोंट नो प्ले एनीथिंग, दिस इज व्हाट शी टर्म्स एज phenotext. Signification is a combination of these two elements for her. ये है signification. तो क्रिस्टोफर located the maternal at the heart of language. A theoretical shift that was at once startling and innovative, for it proposed a strong case for returning to the materiality of language and subject formation, the body. तो एक बहुत theoretical shift था, because she was talking about the body now. Language और body की वो बात कर रही हैं। तो क्रिस्टोफर sees art as a means of articulating the semiotics. ठीक है? Semiotics, I hope it is clear to you. फाइनल चीज जो स्ट्रक्चरलिज्म में है वो है नैरेटिव थ्योरी। ठीक है। somehow it is associated, somehow it is different, but included in the chapter. नैरेटिव सबको पता है क्या होता है। कोई एक कुछ लिखा हुआ है, उसमें किस तरह का नैरेटिव है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सिंपल लगता है समझने में, लेकिन कभी-कभी कॉम्प्लेक्स टर्म भी है लिटरेरी और क्रिटिकल थ्योरी में। इट इज यूज्ड इंटरचेंजेबली विद स्टोरी। अच्छा, नैरेटिव क्या है? जो स्टोरी है, जो प्लॉट है वो नैरेटिव है, या इवन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, वो भी नैरेटिव है। लेट अस ट्राई टू डिफाइन नैरेटिव बिफोर फर्स्ट एक्सप्लोरिंग द स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस ऑफ नैरेटिव। ठीक है। Please note down the names if you have the book, underline or highlight. Paul Cobley. Paul Cobley एक बहुत अच्छा definition हमें दिया है इन्होंने narrative का। Narrative is a particular form of representation implementing science. Thus, a narrative is a system of science. We know that science can be verbal, written, oral, gesture, iconic, in a particular sequence or order. पूरा एक सिस्टम है नैरेटिव, साइंस से भरा हुआ है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। बट नैरेटिव इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टोरीज और फिल्म्स। एक नैरेटिव आप भी क्रिएट कर सकते हो किसी के बारे में बताते हुए, है ना। नैरेटिव इज ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशन। नेशन बिल्ड हो रहा है जी, नेशन के बारे में लोग कुछ बात कर रहे हैं, वो भी एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, वायलेंस, सब चीजों के बारे में हम नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा नाम है पॉल वेक। पॉल वेक ने डिफाइन किया नैरेटिव को एज द वेज इन विच वी कंस्ट्रक्ट नोशंस ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रेस, रिलीजन, आइडेंटिटी एंड टाइम। वो सारे तरीके जिनसे हम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हम हिस्ट्री के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, हम नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आजकल हिस्ट्री के बारे में अलग ही बात हो रही है, बच्चों की हिस्ट्री की बुक्स चेंज हो रही हैं। पहले कुछ और नैरेटिव कंस्ट्रक्टेड था, लेकिन अब इट कैन बी पॉलिटिकल, राइट। आप फिर पॉलिटिक्स के बारे में, रेस, रिलीजन, इन सब चीजों के बारे में आप कैसे नोशंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। All of these things might be understood as stories that both explain and construct the ways in which the world is experienced. How nice. Now, for purposes of literary and cultural analysis, हम लोग भी define कर सकते हैं narrative को कैसे। Number one, it is the act of representation using signs in a particular sequence so that construct specific notions of reality, self and the world. हम लोग किसी चीज को represent कर रहे हैं, साइंस को यूज कर रहे हैं। लेट्स से हम किसी हिस्टोरिकल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम एक रिप्रेजेंटेशन का एक्ट है वो, हम हिस्ट्री के उस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर साइंस यूज करके, कुछ रियलिटी
का नोशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमारे अपने बारे में या मे बी उस वर्ल्ड के बारे में। सेकंड, आर कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द यूज ऑफ वर्ड्स, साउंड्स, फिगर्स, जेस्चर एंड रिलेशंस। हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड को? आपको क्या लगता है कैसी है दुनिया? आप भी एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो, इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू लैंग्वेज। नैरेटिव इज ऑफ कोर्स, हम लोग ये सारी चीजें लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट करते हैं, करेक्ट? 20th century में structuralism generated some of the most rigorous analysis of narrative and its forms. In what follows, we look at a few of the most important theorists of narrative. The study of narrative is called narratology. तो इस narrative को अब हमने study करना है कि कैसा कोई narrative create हुआ है। तो उसको जब study करते हैं तो उसको हम narratology बोलते हैं, और ये term interchangeably use होती है poetics के साथ। ठीक है, अ टर्म दैट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज ऑफ नैरेटिव्स, कि क्या पोएटिक्स है इसमें, लैंग्वेज क्या है नैरेटिव का, एंड हैज कम टू ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज इन ऑलमोस्ट एवरी थ्योरी टुडे। हम लोग डिस्कोर्स बोलते हैं उसको, राइट? डिस्कोर्स भी एक नैरेटिव की तरह ही है। डिस्कोर्स ट्रेडिशनली मेंट स्पोकन और रिटन। क्या होता है डिस्कोर्स? क्या होता है? लेट्स से मैं किसी मैस्कुलिनिटी के बारे में अपने विचार आपको दे रही हूँ, तो मैं एक डिस्कोर्स दे रही हूँ। मेरा स्पोकन प्रेजेंटेशन है ऑन मैस्कुलिनिटी, रिटन भी हो सकता है। सो इन वी इट इज व्हाट वी रीड और वी लिसन टू। इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, दिस इज द सेंस इन विच डिस्कोर्स इज यूज्ड। नाउ अब स्ट्रक्चरलिज्म में इस तरह से हम डिस्कोर्स को समझते हैं। After post-structuralism, it refers to the language used in social practice. Discourse, language क्या use हुई एक social practice में? That is, discourse now refers to the functional as well as social, political, ideological aspects of language. Something we shall explore in post-structuralism. when हम फूको बात कर फूको की बात करेंगे। अब रशियन फॉर्मलिज्म हमने कर लिया है। इन्होंने भी तो they've studied language very closely. So, and the poetics of fiction, as we've already noted, Russian formalists were more interested in the language of poetry, right? लेकिन बाद के works में, especially these people, Prop, इन्होंने folk tales की बात की, Shklovsky जिन्होंने artist technique लिखा था, Tristram Shandy को analyze किया था, Todorov, they explored narrative structure in fiction. If you think I'm going fast, please let me know in the comment section. क्योंकि ज़्यादा cover करना तो थोड़ा speed बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? More contemporary narratologists like, please note down the name, Gerard Jennett. Gerard Jennett ने भी, ये एक बहुत important narratologist है, ठीक है? He builds on the structuralism of Russian formalists as they refine their study of prose narratives. The folktale. अब जब हम रशियन फॉर्मलिस्टिज्म कर रहे थे तब हमने इस चीज को डिटेल में पढ़ा नहीं था। मैंने आपको बताया जरूर था कि इन्होंने फंक्शंस बताए हैं, इन्होंने कैरेक्टर्स डिफाइन किए हैं। तो व्लादिमीर प्रॉप क्या करते हैं, फोक टेल्स को एनालाइज करते हैं, और इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म एट वर्क। प्रॉप ने आर्ग्यू किया कि हर एक जो कैरेक्टर है ना फोक टेल के प्लॉट में, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, कि हीरो का ये फंक्शन है, विलन का ये फंक्शन है, एक हेल्पर का ये फंक्शन है। सो दिस इज इन इटसेल्फ This in itself is hardly new. We know that after structuralism, that a plot is the consequence of many elements in relation with each other. है ना? हम plot को study कर रहे हैं तो ये हुआ, वो हुआ, हम different चीजों को एक दूसरे के relation में, binaries में, किसी भी चीज में देख सकते हैं relation में. What was fascinating? लेकिन Prop ने different क्या किया? Prop का analysis, what is fascinating is that he is able to locate a mere 7 की परफॉर्मर्स। इन्होंने कहा 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हर आपको मैक्सिमम फोक टेल्स में मिल जाएंगे, जो 7 स्फीयर्स ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं। दैट इज, ऑल फेरी टेल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सेट ऑफ 7 कैरेक्टर्स हु जनरेट द इंटायर प्लॉट थ्रू देयर वेरियस रिलेशनशिप। एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या एक्शन हो रहा है, हम पूरा प्लॉट समझ सकते हैं उससे। और ये है वो लिस्ट। हीरो, एक नकली हीरो, जैसे फॉल्स हीरो का नाम आता है ना, मुझे ना कभी खुशी कभी गम में वो जो करीना कपूर को एक लड़का पसंद करता था, मेरे दिमाग में वही आता है, फॉल्स हीरो। विलन, देन वी हैव डोनर और प्रोवाइडर। आप कोई भी फोक टेल प्लीज इमेजिन, फोक टेल है, नॉट कभी खुशी कभी गम। हेल्पर, एक प्रिंसेस और उसका फादर होगा, और एक डिस्पैचर होगा।
ना प्रॉप ने आइडेंटिफाई किए 31 फंक्शंस टू बी फाउंड इन एवरी फोक टेल। दीज आर, इन्होंने लिखे भी हैं। एब्सेंटेशन, आप इनके मतलब देख सकते हो, आराम से मिल जाएंगे। इंटरडिक्शन, वायलेशन होगा एक, रिकॉनेसांस होगा, डिलीवरी होगी, एक बंदा होगा जो हेल्प कर रहा है, वो डिलीवर करेगा लड़की को लड़के के पास, एक ट्रिकरी कर रहा है, एक कोई कॉम्प्लिसिटी बन रही है, एक विलनी है, लैक है, mediation, counteraction, and so on and so forth. ठीक है, these are all 31 functions that he explained. Now, the folktale is thus reducible to this set of functions created by the 7 performers. It is important to realize here that the number of spheres of action is finite. कितने भी हो सकते हैं action, even when the number of characters is infinite. चाहे 7 ही हैं, चाहे characters बहुत ज़्यादा है, जो नंबर ऑफ स्फीयर्स ऑफ एक्शन है ना, वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। उतने ही एक्शन के स्फीयर्स आपको मिलेंगे। दैट इज, whatever be the number of characters, they all combine in specific ways वही प्लॉट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, so we can discover such a scheme in, let's say, popular Hindi films. We have the hero, है ना, we have the heroine, we have the villain. The hero has a task set out for himself कि मैं ये करने अब निकल जाऊंगा, मुझे पैसे कमाने हैं, through which he has to prove himself. अब इसी टास्क करते करते he is helped by some and he's obstructed by others. He eventually triumphs and the villain is destroyed. The underlying scheme here is of good versus evil, where evil is ultimately defeated and good triumphs. है ना, अंत में बुराई का अंत होगा और सच्चाई की जीत, जैसे रामायण में हम देखते हैं। After all the permutations and combinations of the actions in the plot, this essential scheme does not change कि यही होगा, तुम्हें पता है। It is the, आप कोई भी अमिताभ बच्चन की फिल्म ले लो, अंत में हमें पता है he is going to win. So it is the structuring principle of the film. So here is a basic formula. Boy meets girl, they fall in love, tensions in families as a result. Boy or girl has to prove himself or herself. Plot to ensure the lovers do not have a smooth path to marriage. Villain plays the dirty tricks. Struggles of hero or heroine, villain defeated, parents reconciled, and last में marriage. अब इसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है वो आपकी मर्जी है। फिर आता है स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी। ये था, ये हमने क्या देखा, रशियन फॉर्मलिज्म एंड द पोएटिक्स ऑफ फिक्शन। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी की। द स्टडी ऑफ नैरेटिव वाज ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय स्ट्रक्चरलिज्म, कि जो जो चीजें स्ट्रक्चरलिज्म में थी उनको इन्होंने अडेप्ट किया है। इट सिस्टमेटाइज्ड द स्टडी ऑफ प्लॉट, कैरेक्टर, सिंबल, इन सब चीजों की स्टडी जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गई कि ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट वे से हम किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे। So it provided a formula for narratives as seen in the work of Prop. One of the earliest practitioners of structuralist narratology was, please mark, A.J. Grimm's. Okay? A.J. Grimm's, important name. A.J. Grimm's. इन्होंने वर्क लिखा था सिमेंटिक स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स 1966, built upon Saussure's idea of binary oppositions. Saussure का इन्होंने आइडिया लिया बाइनरी वाला कि हम लोग दुनिया को ऐसे ही देखते हैं और ऐसी मीनिंग जनरेट करते हैं, और इन्होंने डेवलप किया व्हाट हैज बीन कॉल्ड स्ट्रक्चरल सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ साइंस। अब स्ट्रक्चरल सिमियोटिक्स देखते हैं। ग्रिमस ने क्या किया, इन्होंने देखा ऑपोजिशंस कैसे काम करते हैं और हमें कैसे मीनिंग्स को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं ऑपोजिशंस। आप कभी भी देखो, आप जब मीनिंग जनरेट करने की कोशिश करो किसी चीज से, तो आपके दिमाग में बाइनरीज आती हैं, अच्छा बुरा, सच झूठ, मैन वुमन, नाइट डे। He suggested that there are semantic units that work in opposition, and उसको इन्होंने टर्म दिया seams, और आर्ग्यू किया दैट मीनिंग इमर्जेस इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सीम्स। मीनिंग वहीं इमर्ज होता है जब सीम्स आपस में झगड़ते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं।
Some common themes are light, dark, up, down, male, female. So this binary opposition is the primary structure of all meaning production. Yeah, ठीक है? It is possible that we see the paired opposites or themes as positives or negatives, where one element is the negative of the pair, जैसे dark as the negative of light, female as the negative of male. हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बाइनरीज में एक टर्म को हमेशा ऊपर रखते हैं हायरार्की में, नीचे रखेंगे, एक को नेगेटिव एस्पेक्ट में रखेंगे। ये जो निगेटेड कंपोनेंट है ना इस पूरे चीज में, दैट वुड बी डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली बाय पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फेमिनिज्म आल्सो, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स ने टर्म दिया है अपोरिया, विच इज इसी बाइनरी जो निगेशन और पॉजिटिव है इसको खत्म करना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रीच करना विच इज मीनिंगलेसनेस, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे दोनों टर्म्स। So Grimm's went on to suggest that ये जो seams है ना, they work as actants. इन seams की वजह से हम generate कर रहे हैं narrative को, तो ये actants की तरह काम करते हैं। What Grimm's was proposing was effectively a Saussurian notion. The seams form the basic formula, the rules and the underlying structure of the language. किसी भी narrative में, किसी भी structure में seams basic formula है, जैसे हम long की बात करते हैं। They express themselves or are manifested as narratives and plots and stories in the contexts जो parole है. So the themes in various combinations are enunciated in particular contexts to produce stories. ये जो themes हैं, जो binaries हैं, इनको हम particular combinations में लगाते हैं, फिर वो stories create करती हैं। So Grimm's ने evolve किया एक set of six actants, that is a set of themes or binary oppositions that provide the grammar and rules for all narratives as follows. Subject object होगा, sender receiver होगा, helper opponent होगा, ठीक है? 6 actants. Now these are the actants जो कुछ specific functions करते हैं सारी narratives में, जैसे कि जो subject है उसको एक let's say hero subject है, उसका एक पर्टिकुलर एम है, कोई डिजायर है, इज गोइंग ऑन अ पर्टिकुलर गोल कि मुझे लेट्स से सच की तलाश है या मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे को सब ऐसा समझते हैं तो मैं अब करके दिखाऊंगा टाइप्स। एक डिजायर होगा, एक सर्च होगी, एक एम होगा। दूसरा है कम्युनिकेशन। अब जो सब्जेक्ट है, सेंट आउट ऑन हिज और मिशन बाय अ सेंडर हु फैसिलिटेट्स द मिशन and will reward the subject upon his or her success. The receiver is the one who rewards. And third is auxiliary support or hindrance. एक तो हेल्प करता है कोई सब्जेक्ट को उसकी क्वेस्ट, उसके मिशन में, और दूसरा कोई विलन टाइप होगा जो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसके बाद। ये उनके फंक्शंस हैं, जैसे हमने प्रॉप्ट में देखा। In many cases, the categories might merge. For example, the sender actant might very well be the receiver also. According to Grimm's, a formula for the narrative can therefore be as follows. Contract or prohibition, where the subject is sent out on a quest or mission. The subject might accept the contract or disobey the contract. If the subject accepts, then we have established the contract. If the subject declines or disobeys, we have violation of contract. If the subject accepts, we have rewards from sender receiver. If the subject violates, we have punishments. The whole process can be read under 3 main structures जो हर एक नैरेटिव के लिए कॉमन होंगे। एक हम पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल स्ट्रक्चर्स, जहां पे जो हीरो है, जो सब्जेक्ट है, उसको एक टास्क दिया सेंडर ने, उसको एक पर्टिकुलर मिशन पे भेज दिया कि तुम ये ऑब्जेक्ट तुम ढूंढ के लाओ, उसको फिर ऑफर किया एक कॉन्ट्रैक्ट या प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग समथिंग। कॉन्ट्रैक्चुअल स्ट्रक्चर्स प्लॉट को लॉन्च करते हैं, फिर वो परफॉर्म करेगा, वो उस क्वेस्ट पे निकल जाएगा, तो वो हम बोलते हैं परफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर्स। अब जो सब्जेक्ट है वो टास्क उसने ले लिया, बैटल्स आई, ऑब्स्टिकल्स आए, हेल्पर आया, ओपोनेंट आए, सब ट्रैप्स में फंसा, XYZ चीजें हुई, इसको हम कहते हैं एक्शन इन द नैरेटिव, परफॉर्मेटिव। और फाइनली वी हैव द डिसजंक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिस इज द मोमेंट ऑफ अराइवल, डिपार्चर एंड मूवमेंट इन द नैरेटिव, जहां पे सब्जेक्ट जा रहा है पैलेस छोड़ के, घर छोड़ के, और ओपोनेंट के ट्रैप में फंस रहा है। दीज आर इंटरल्यूड्स, ना, बीच बीच में छोटे छोटे ट्रैप्स, नैरेटिव्स, इंटरल्यूड्स इन द नैरेटिव वेयर द
सीन फॉर द नेक्स्ट एक्शन इज सेट। फॉर एग्जाम्पल हिंदी फिल्म्स में हीरो बोलता है मैं बदला लेके रहूंगा और बस निकल जाता है उसके घर से, मैं वापस आऊंगा, तुम याद रखना। सो हियर there's a gap between the scene of swearing and then ब्लैक स्क्रीन आती है और नेक्स्ट सीन आ जाता है। तो फिलर्स टाइप होते हैं डिसजंक्टिव स्ट्रक्चर्स। So this gap is the disjunctive structure that enables a shift between scenes and brings in new actants. From a scene evolving a hero actant, we now have one with the villain actant too. Grimmers की तरह ही टोडोरोव थे। He also built on the notion that there is a definite grammar to all text. मतलब हर टेक्स्ट में हम कुछ चीजें ढूंढ सकते हैं। टोडोरोव ने 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स दे दिए। बहुत ये जो आज का लेक्चर है इसमें बहुत सारी टर्म्स आपको मिली हैं, तो सबको प्लीज रिवाइज करना। 3 टर्म्स हैं, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक और वर्बल। और सारी जो टर्म्स है ना, ट्रस्ट मी दे आर एक दूसरे के साथ इतनी सिमिलर हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यार अभी तो हमने कुछ सिमेंटिक्स पढ़ा था, अभी हमने सेमियोटिक्स पढ़ा था, अभी हमने सेमियोसिस पढ़ लिया। सो ऑल ऑफ दीस टर्म्स गेट कंफ्यूजिंग समटाइम्स, सो यू कैन राइट देम डाउन। सिमेंटिक क्या है? व्हिच वुड बी द फॉर्म, किस फॉर्म में वो है नैरेटिव। सिंटैक्टिक है, व्हिच वुड बी द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स। वर्बल इज द वर्ड्स फ्रेजेस थ्रू व्हिच द स्टोरी इज टोल्ड। 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं टेक्स्ट में। टोडोरोव का जो इंटरेस्ट है, इट लाइज इन द सेकंड, सिंटैक्टिक अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट्स, कैसे एलिमेंट्स को स्ट्रक्चरली डाला गया है। तो यहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं हर टेक्स्ट में, which is propositions and sequence. Propositions क्या होते हैं? Propositions होते हैं बेसिक एक्शंस सारे नैरेटिव में जो होंगे। जैसे आर के नारायण का गाइड है, द बेसिक प्रोपोनेशन में बी लिस्टेड एज कि राजू रोजी से मिला, उनको प्यार हो गया और राजू एनकरेज करता है उसको, अब उसकी आर्ट में वो पॉपुलर हो जाती है। फिर राजू बीट्रे करता है उसके ट्रस्ट को, राजू गोज अवे, राजू इज ट्रांसफॉर्म, एक सेंट लाइक स्ट्रक्चर वो आ जाता है। तो ये basic proposition hai. Now these propositions have to be arranged in a sequence to generate a story. There can be many sequences in a text. Propositions can be arranged in any of the 3 sequences. या तो आप टेम्पोरल या लॉजिकल या स्पेशल, आप किसी भी तरह से इनको डाल सकते हो। टेम्पोरल जहां पे टाइम के सीक्वेंस से हम डालेंगे कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। लॉजिकल जहां पे कॉज इफेक्ट, कि ये हुआ था क्योंकि उसने ये किया था, दिस हैपेंड एंड देयरफॉर दिस हैपेंड। और स्पेशल इज स्पेस, जहां पे प्लॉट में बहुत सारे सब डिविजन हो सकते हैं कि दिस हैपेंड मीनवाइल दूसरी जगह ये भी चल रहा था, राइट। सो दिस इज अबाउट हिम। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। नेक्स्ट में हम लोग बाख्तिन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर। Yeah, we can try. Maybe, yes. ठीक है? Yeah. So please revise still Bakhtin very nicely. And if there's any confusion, let me know. You can get in touch with me. If you wish to join any course, please do. It will be beneficial and you will learn. Thank you. I will see you in the next one.